Hello everyone, welcome back to my class. Myself Taposhi, USST teacher. I have already completed lesson number 4. That is the motions of the earth. Today we have a quick revision of this chapter. So listen it carefully. There are two motions of the earth, that is rotation and revolution. What is rotation? The movement of the earth on its own axis is called rotation. And due to rotation, day-night causes, and the earth takes 24 hours to complete one rotation. कितने लगते हैं अर्थ को? 24 hours लगते हैं to complete one rotation. Now the second motion of the earth is revolution. The movement of the earth around the sun on a fixed path. This fixed path is known as orbit. It's called revolution, and it causes change of seasons. And how much time Earth takes to complete one revolution? It takes 365 days and 6 hours. That means 365 and 1 by 4 days to complete one revolution. Is that clear? Now about the inclination of the Earth axis. Inclination of the Earth axis means tilting of the Earth axis. The Earth axis is not perpendicular. That means it is not at the 90 degree. Earth axis perpendicular नहीं है. But it is tilted on one side. एक side earth axis tilted है. Now it क्या होता है? It makes an angle of 23.5 degree from the vertical or perpendicular plane. ये perpendicular जो line है, इससे earth axis tilted है. कितनी डिग्री बना रही है? 23.5 degree from the vertical line और perpendicular line. Perpendicular line से earth axis 23.5 degree बना रही है. और दिस वन इज ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन से जो अर्थ एक्सिस है वो कितनी डिग्री बना रही है? 66.5 डिग्री बना रही है. दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस. तो आपको समझ में आ गया 23.5 डिग्री कब बना रही है? 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन से बना रही है एक्सिस, और वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री बना रही है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ड्यू टू रोटेशन डे नाइट कॉजेस. But question arises, day night होता कैसे? How do day and night occurs on the earth? This question is also given in your textbook also. ये question textbook में भी दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिए एक बार. We know that the movement of the earth on its own axis is called rotation, and the earth rotates from west to east. The portion of the earth which faces the sun, day occurs, and just the opposite portion of the earth, night occurs. Is that clear? And in this way the cycle of days and night goes on. In this way day and night occurs on the earth. ये डे और नाइट कैसे होता है, ये मैंने आपको एक एक्टिविटी के द्वारा भी समझाया था कि कैसे सनराइज के बाद सनसेट और फिर सनसेट के बाद सनराइज आता है. और द सनराइज से पहले की जो पोजीशन होती है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ बिफोर सनराइज, उसको हम कहते हैं डॉन. ये कौन सी पोजीशन है? सनराइज से पहले की. दैट मीन्स इस टाइम भोर हो रहा है. और द पोजीशन ऑफ द अर्थ बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले की पोजीशन को हम कहते हैं डस्क. गोधूली कहते हैं इसको, जिस टाइम संध्या हो रही होती है. तो इसी तरह में दिन और रात का साइकिल चलता रहता है. तो डॉन और डस्क आपको क्लियर हो गया. इसको कहते हैं द पोजीशन ऑफ द अर्थ बिफोर सनराइज, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ बिफोर सनसेट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन अवर माइंड दैट व्हाई द मंथ ऑफ फरवरी हैव 29 डेज आफ्टर एवरी 4 years. हर 4 साल के बाद फरवरी के महीने में 29 डेज क्यों आते हैं? Okay, this question is given in your textbook also. As we know that Earth completes one revolution in 365 days and 6 hours. Now, the 6 hours is added over 4 years. Okay, got it? The 6 hours is added over 4 years. 4 साल तक ये 6 घंटे हम जोड़ते रहेंगे. तो 4 साल तक जोड़ने के बाद कितना बनता है? 24 hours. Okay, 24 hour means 1 day. 24 hour में एक दिन होता है. दिस एक्स्ट्रा 1 day
is added to the month of फरवरी, फरवरी के मंथ में एक्स्ट्रा 1 day ऐड हो जाता है to make the month of फरवरी of 29 days। तो हर 4 साल के बाद फरवरी के मंथ में 29 डेज क्यों होता है पता चल गया। तो जिस दिन फरवरी के मंथ में 29 डेज होता है उस दिन टोटल कितने दिन होते हैं? 365 डेज और 6 आवर्स नहीं होते हैं, उस दिन होते हैं 366 डेज। तो उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। तो लीप ईयर किसको कहते हैं? द ईयर ऑफ, लीप ईयर क्या हुआ? द ईयर ऑफ 366 डेज। The year of 366 days is called the year of 366 days is called leap year. Is that clear? Now about the second motion of the earth, that is revolution of the earth. Now I am going to tell you how revolution of the earth is responsible for the change of seasons. Not only the revolution of the earth, tilting of the earth is also responsible. अब इस ध्यान से सुनिएगा, ये अर्थ की 4 पोजीशंस हैं जिससे हम मेनली 4 सीजन्स होते हैं, इसलिए मैंने ये अर्थ की 4 पोजीशंस बनाई है। फर्स्ट पोजीशन हम लेते हैं जून 21 को। जून 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैक्सिमम टिल्टिंग सन की साइड होती है और सदर्न हेमिस्फीयर आपका पीछे आ जाता है। अब ध्यान करना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, तो आपको आसानी से कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम समर सोल्स्टिस और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होता है। समर सोल्स्टिस मींस द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट and winter solstice the nights are longer than the day. In this position the tropic of Cancer is tilted over the sun. Tropic of Cancer जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका किस पोजीशन? सन की साइड होगा आपका। सर क्लियर? अब इन दिस जून 21 नॉर्थ पोल इज कंप्लीटली टिल्टेड ओवर द सन, इसीलिए नॉर्थ पोल में आपका 6 months डे होता है और साउथ पोल में एंटार्क्टिक सर्कल की साइड आपका 6 months नाइट होता है। ये पोजीशन आपको क्लियर हो गया। अब आफ्टर 3 months सितंबर 23 में इक्विनॉक्स पोजीशन आता है। इक्विनॉक्स मींस व्हेन बोथ द हेमिस्फीयर, दैट मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम आता है उस टाइम, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आता है। ये कंप्लीटली डार्क पोजीशन क्यों दिखा रखा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया कि किसलिए कंप्लीटली डार्क पोर्शन दिखा रखा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इसलिए ऑटोमनल इक्विनॉक्स और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग होने के कारण इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। आफ्टर 3 months फिर हम लेते हैं डिसम्बर 22 को। डिसम्बर 22 को ध्यान करो, इंडिया में विंटर आता है। तो अब क्या हुआ, डिसम्बर 22 में सदर्न हेमिस्फीयर आपका सन की साइड आ गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका पीछे की साइड चला गया। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम आएगा समर सोल्स्टिस, दैट मींस द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट, इसमें जस्ट ऑपोजिट था। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा, विंटर सोल्स्टिस, सर्दी का मौसम होता है इस टाइम, तो नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे। सेट क्लियर? फिर से देखो, या सदर्न हेमिस्फीयर आपका सन की साइड आ गया, इसका मतलब आपका जो साउथ पोल है वो सन की साइड आ गया। यहाँ पे साउथ पोल में 6 months डे और नॉर्थ पोल की साइड आर्टिक सर्कल में 6 months नाइट होता है। जस्ट इसका ऑपोजिट पोजीशन हो गया। नेक्स्ट फिर हम आते हैं मार्च 21 में। मार्च 21 में अगेन इक्विनॉक्स आता है। सेम, the northern and southern hemisphere both receives equal amount of heat. northern hemisphere में इस टाइम ऑटम था, अब यहाँ पे northern hemisphere में स्प्रिंग आ जाएगा, इसीलिए इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। कब कहते हैं? मार्च 21 में northern hemisphere में वर्नल इक्विनॉक्स, और southern hemisphere में क्या आ जाएगा, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। दैट क्लियर? जस्ट इसका जो अपोजिट पोजीशन में, ये लाइटेड पोर्शन क्यों दिखा रखा है ये मैंने आपको समझा दिया था कि मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, हम अर्थ इस पोजीशन में आ गया, अर्थ इस पोजीशन में आ गया और आप इस पोजीशन में खड़े हो तो इस कंप्लीटली आपको लाइटेड पोर्शन दिख रहा है, इसीलिए ये लाइट पोर्शन है। सब क्लियर? इसी तरह सीजन्स का जो चेंज चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। No more today. Your lesson number 4 has been completed. Now I have few questions. You have to
Answer these questions in the comment box. The questions are, what are the two types of motions of the earth? So, okay. And how much time earth takes to complete one rotation, which causes day and night? This is only second question. And the third question is, how much time the earth takes to complete one revolution, which causes season change? तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं. ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक. थैंक यू.